अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबने ज्वाइन कर लिया या अभी करना है ज्वाइन? देयर आर 63 पार्टिसिपेंट्स. Okay, please join all the students. Then we are going to start our topic. So our today's topic is wound healing. ठीक है, कल हमने टिश्यू पेयर का किया है और today we are going to discuss the wound healing. अच्छा, this is a picture of wound. What do you understand by wound healing? तो आप क्या टर्म क्या आपके माइंड में आता है कि wound healing से? Any student? मैम पहले जो कि डैमेज हुई है स्किन वगैरह, पहले जो कि डैमेज हुई है स्किन वगैरह वहाँ पे वुंड बना है. वुंड हीलिंग का क्या है कि आपकी नॉर्मल जो है स्किन या आपकी जो स्किन के लेयर्स हैं, ठीक है, किसी भी लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुई है या कोई इंजरी हुई है, ट्रॉमा, ठीक है, इवन आफ्टर सर्जरी, ठीक है, तो उसको क्या है, लेयर को वापस आने के लिए a process that is called wound healing. ठीक है, इट मीन्स कि उसको हील भी तो होना है ना, ठीक है, उससे दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करनी है, ठीक है, बट इट्स नॉट पॉसिबल 100%, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड द हीलिंग. तो इसमें हम सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. बेसिक्स में वी विल सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन. As you already know, skin is the largest organ of the body. ठीक है, largest organ of the body is skin, and its primary function is protect. It means it protects our body from, मतलब कि आपके जितनी भी नीचे वेसल्स हैं ये वो एज अ होल जो है आपकी स्किन जो है इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑल द मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया, आपको ट्रॉमा से हर तरह से, ठीक है, इवन के आपको हीट और जो एनवायरनमेंट के जो हैं जितने भी एनवायरमेंटल इंसल्ट से आपको प्रोटेक्ट करती है. So it is composed of several layers. The outermost layer is called epidermis. Then there is dermis containing the capillary net. And then there is subcutaneous layer, that is hypodermis and adipose layer. So first of all, you should know the basic structure of skin. Okay, then next there is the thickness of the skin. It varies from a very thin membrane at internal flexures. internal flexures कौन कौन सी है आपके बॉडी के? लाइक ऑन एल्बोज पे, आपके नी जॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे भी आपके फ्लेक्सस हैं, इट सो पे फ्लेक्सस पे देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन, but it can also be thicker at the sole of the feet, which bear considerable pressure. ठीक है, so there are also some other structures like in the skin there are also hair follicles, sebaceous glands, and your sweat glands. They pass through the epidermis, but they arise from the dermal layer.
ठीक है। मेजर आपको पता होगा स्किन में कौन कौन सी चीजें होती है, हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड, दैट सिक्रीट सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड, जो कि आपकी स्वेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। दे पास थ्रू द एपिडर्मिस, ठीक है, दे पास थ्रू द एपिडर्मिस बट दे आर ओरिजिनली राइजिंग फ्रॉम द डर्मल लेयर। So the next is how we will classify wounds. So a wound can be क्लासिफिकेशन से पहले हम इसका करेंगे व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इट, ठीक है, तो बेसिकली है क्या है। तो एज अ जनरल या हम उसको इस तरह डिफाइन करेंगे, अ wound can be defined as a cut or break in the continuity of any tissue caused by injury or operation. So what is the definition? It's a cut or break in the continuity of any tissue caused by injury or by operation or any type of surgery. So next we will do what are the wounds classification. We classify wounds according to their nature, ठीक है, as a whole. There can be some abrasions, contusion, incision, laceration, open wound. There can be some penetrating wound, puncture, or septic wound, etc. Okay, wounds, they can be classified according to the number of skin layers involved. मतलब कि कोई भी आपके पास wound आता है तो we can say this is a superficial wound or this is a deep wound, ठीक है. So wounds, they can be classified according to the number of skin layers involved, ठीक है. It means there is involvement of epidermis, dermis, or the next layer. So number one, when we classify wounds, number one, there is a superficial wound. What will be in superficial wound? It only involves the epidermis. Superficial wound, it will be only the epidermis will be involved, and in partial thickness wound में क्या होगा? It involve the epidermis and the dermis, ठीक है. As you can see in superficial में there was the involvement of only one layer, that is epidermis. In partial thickness में there is involvement of both epidermis and the dermis, and in full thickness there it involves the epidermis, dermis, fat, fascia, and even can expose the bone. आप लोगों ने ये सारे थोड़े से माइंड में रखने हैं. देन अगेन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है, इसी में से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे. Okay, the next classification, we can also classify the wound on the basis of this. If the wound is clean, that is non-traumatic, clean but non-traumatic, and there can be clean and contaminated wound. This is clean or contaminated wound, and the number 3 there is contaminated wound, and 4 there can be dirty wound. Okay, the next, this is very important. What are the ways in which wounds heal? So 3 basic classifications. We divide the wound healing in 3 basic classifications. Number 1, there is healing by primary intention. Second, there is healing by secondary intention, and the third, they can be delayed primary. Okay. Now we will see what happens in healing by primary intention. Basically, in healing by primary intention, the 2 opposed surfaces of a clean, okay, remember 2 opposed surfaces of a clean and incised wound, no significant degree of tissue loss. It means as you can see, there will be if the wound is incised by the any surgeon, okay, or that is clean and that is not that is uninfected, that is clean and infected, non-infected wound that is incised by a surgeon, ठीक है, उसमें क्या होगा, and their both surfaces there will be approximated by sutures, तो ठीक है. So in this wound there will be healing by primary intention. So healing takes place from the internal layers to the outward. ये आपको मैं सिर्फ इसकी बेसिक थोड़ी सी बता रही हूँ, ठीक है. Then we will do in detail. Second, there is healing by secondary intention. If there is significant tissue loss in the formation of the wound, then healing will begin by the production of the granulation tissue, ठीक है. इसमें healing जो है
it will be by the production of granulation tissue and balls, ठीक है, and what will be in delayed primary healing if there is a high infection risk, the patient is given antibiotics and further there will be wound healing. अच्छा बच्चों, आपकी बुक्स में दिया गया हुआ है, इसमें है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन जो है काफी डिटेल में दी है, ठीक है। इसमें क्या है, व्हाट आर द इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, व्हेन द इंजरी इन्वॉल्व्स ओनली द एपिथेलियल लेयर, ठीक है। इसमें क्या है, it will be there will be primary union or healing by the first intention, ठीक है। इसमें एग्जांपल दी हुई है, there is a healing of a clean, there is a wound is clean and it is uninfected and it is by incision given by surgeon and their both edges they are approximately by the stitches, so such a wound will be healing by primary intention। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, अच्छा इसमें आपकी बुक्स में कुछ डायग्राम्स भी बनी हुई है, ठीक है। इसमें दे आर अकॉर्डिंग टू द टाइम। नंबर 1 देयर इज अ healing by primary intention, time limit first is 24 hours and then there is 3 to 7 days and then in weeks। So first of all we will see what occurs within 24 hours। Within 24 hours, first of all there will be neutrophils and they are seen at the incision margins and they will be migrating to the clot, ठीक है। आपका जो फेब्रिन क्लॉट हो रहा था इसकी तरफ माइग्रेशन कर रही है, दिस इज अकरिंग विद इन द 24 आवर्स। सो अगेन आई विल टेल यू, विद इन 24 आवर्स द न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दे आर एट द इंसिजन मार्जिन, दे विल बी माइग्रेटिंग टुवर्ड द फिब्रिन क्लॉट एंड फिब्रिन क्लॉट पे माइग्रेशन के बाद न्यूट्रोफिल्स दे विल रिलीज सम proteolytic enzymes that क्या है, what is the function of these proteolytic enzymes, they begin to clear the debris, okay। neutrophils आए, they will migrate towards the fibrin clot and what is the function of these neutrophils, ठीक है। neutrophils they will basically release some proteolytic enzymes that will begin to clear the debris। so on the other side if you see there will be basal layers, basal cells at the cut edge of the epidermis, they will begin to show some mitotic activity, ठीक है। ऊपर आप देखो तो उसमें कुछ mitotic activity start हो जाएगी and within 24 to 48 hours epithelial cells from both edges they will start to migrate and proliferate along the dermis। so there will be deposition of basement membrane components, so the cells meet in the midline beneath the surface cap, ठीक है। आपका जो ऊपर स्कैप नजर आ रहा है उधर पे the cells beneath the they will start to meet in the midline beneath the surface cap, so there will be but continuous epithelial layer that closes the ऊपर जो है आपका स्कैप फॉर्म में that will close the wound, ठीक है। this is occurring within the 24 to 48 hours, ठीक है। and what will be the next step, the next 3 to 7 days what will occur, neutrophils they will replace, ठीक है, they will be replaced by the macrophages, ठीक है। neutrophils जो आपके पहले आए थे they will be replaced by the macrophages and next there will be granulation tissue progressively it will invade the incision space, ठीक है। so I already told you the macrophages they are the key constituents of the tissue pair and their function is also to clear the extracellular debris, fibrin or other foreign material जो भी होता है, ठीक है। and they also promote the angiogenesis। so this is occurring in the 3 to by the day 3, ठीक है। now by the day 5 what will be, by day 5 there will be start of neovascularization, ठीक है। neovascularization it will reach to their peak पे होगी because there will be granulation tissue fills the incision space, so there is also angiogenesis भी progress करेगी allowing the passage of plasmaproteins भी होंगे इसमें and there will be also fibroblast migration at the site of injury, ठीक है। and there is also और ये सब क्या इसको हेल्प कर रहे होंगे by different
ह्यूमन नेक्रोटिक फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स? लाइक पेटेंट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, और आपके फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू दिस। तो क्या है ये सारे आपके ग्रोथ फैक्टर्स, तो इसमें एंड प्लस इवन के ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और जो सारे ग्रोथ फैक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम द मैक्रोफेज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? सेकेंड वीक में हम देख लेते हैं, देयर विल बी continuation of collagen accumulation and fibroblast proliferation. So the leukocyte, they will infiltrate, there will be edema, and there will be also increased vascularity. Okay, the process of blanching also begins, and there will be also increased collagen deposition within the incisional scar and regression of vascular channel. तो क्या है इसमें नेक्स्ट आगे चलेंगे तो इसमें आफ्टर बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, ठीक है, इट मींस कि आफ्टर 4 वीक्स द स्कार इट विल बी comprises of a cellular connective tissue largely devoid of inflammatory cells, and it will be covered by normal epidermis. So but the dermal appendages destroyed in the line of the incision, they are permanently lost, ठीक है। अगर आप उसकी dermal appendages देखें, उसकी line of incision भी, they are totally lost, ठीक है। और the tensile strength of the wound, it will increase with the time, ठीक है, लेकिन ये ऐसा ऐसा इंक्रीज करेगा। Okay, next we will see what happens in the healing by second intention. In healing by second intention में क्या होगा? When there is a tissue loss more extensive, ठीक है। In primary intention से जो wounds हैं उनमें tissue loss नहीं होता, ठीक है। Remember, it will be in the बड़ा perfectly incised होगा, clean होगा, uninfected wound होगा, and there will be no tissue loss, ठीक है। But in wounds that are healing by the second intention, there will be tissue loss. Remember, there will be extensive tissue loss, ठीक है। इसमें examples आ जाएंगी। For example, कोई भी large wound है आपके, कोई abscess बनी हुई है, if there is some ischemic necrosis और या कोई ulceration है, ठीक है। These are the all wounds that will be healed by secondary intention. अच्छा, इन सेकेंडरी इंटेंशन में द इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जो होगा, इट विल बी मोर इंटेंसिव एज कंपेयर टू द प्राइमरी इंटेंशन, एंड देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ अबंडेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है। इंफ्लेमेटरी रिएक्शन भी ज्यादा इंटेंस होगा। सेकेंडली, देयर विल बी अबंडेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू, आई मीन के जो टिश्यू लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए मोर ग्रैनुलेशन टिश्यू इज रिक्वायर्ड। And plus there will be also accumulation of extracellular matrix की भी होगी, and there will be also formation of a large scar, ठीक है। And large scar भी होगा, और large scar है, there will be also wound contraction will be more as compared to the primary intention. अच्छा, इसमें काफी डिटेल में आपको प्राइमरी इंटेंशन का करवाया है। नाउ वी विल सी how the secondary intention differs from the primary intention से किस तरह differ करती है, ठीक है। How will you differentiate the secondary intention from the primary intention? अच्छा, in wounds causing large tissue deficit जो हो रहे होते हैं, ठीक है, the fibrin clot is larger, ठीक है, as compared to the wounds healing by the primary intention, and there will be more exudate and necrotic debris in the wounded area, ठीक है। और मैंने पहले आपको बताया कि इन wounds में inflammation will be also intense as compared to the wounds healing by the primary intention, and there will be large tissue deficit, so the granulation tissue जो होगा that will be more, ठीक है। एंड देयर विल बी मोर एक्सिडेट, डेब्रिस भी ज्यादा होंगी, एंड फिब्रिन भी ज्यादा होगा, दैट मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है। सो लार्ज डेफिसिट दे हैव अ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर सेकेंडरी एंड इन्फ्लेमेशन मीडिएटेड, ठीक
ठीक है, इसमें हो गया, इन्फ्लेमेशन का भी हो गया, ठीक है। और सेकेंडली मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि देयर विल बी मोर ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एज कंपेयर टू द वुंड्स दैट आर हील्ड बाय प्राइमरी इंटेंशन। अच्छा, उसके बाद क्या है इसमें, देयर विल बी आप विसरल मैट्रिक्स कंटेनिंग फिब्रिन प्लाज्मा फिब्रोनेक्टिन और उसमें टाइप 3 कोलेजन इज फॉर्म, but it will be after 2 weeks and it will be also replaced by matrix composed of type 1 collagen। ठीक है, और फोर्थ जो डिफरेंशिएटिंग इसका पॉइंट है इसमें ये है, देयर विल बी wound contraction, it will occur on large areas, on large surface wounds पे the contraction helps to close the wounds by decreasing the gap। ठीक है, contraction का क्या function है, it will try to decrease the gap between its dermal edges and by reducing the wound surface area। So this is a very important feature in healing by secondary wound। ठीक है, जो कि आपकी फर्स्ट healing by primary intention में नहीं। So next we will say all wounds they follow a specific sequence of phases, ठीक है, which may overlap the process of wound healing। It depends on the type of tissue which has been damaged and the nature of the tissue disruption। ठीक है, इसमें क्या है, सारी इसके मैंने आपकी ऑलरेडी बता दी है अकॉर्डिंग टू द आपकी बुक में जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम लिखी हुई है। ठीक है, और उसमें वही चीज सेम है कि इसमें सबसे पहले इंफ्लेमेटरी फेज आती है, देयर इज प्रोलिफरेटिव फेज and the third there is remodeling or maturation phase। ठीक है, this is a schematic diagram of the phases of wound healing। ठीक है, इसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन कितने हो स्टार्ट होगी, इन्फ्लेमेशन कब तक रहती है, it will start from the it will start from the few hours से लेकर ये तकरीबन 7 to 8 days तक। ठीक है, and the second will there will be starting of proliferation from the day 3 and there will be also wound contraction and maturation में क्या है, there will be मतलब कि it will take some weeks to mature to fully mature। और जितने भी हीलिंग से आपके जो wounds heal होती है हील होते हैं उनकी स्ट्रेंथ इट इज नॉट ऑलवेज 100%। ठीक है, इट इज तकरीबन 50 to 70% तक ओरिजिनल जो होता है आपका। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ उसके 50 to 70% तक होती है। ठीक है, कभी भी वुंड हीलिंग के बाद इनकी स्ट्रेंथ 100% ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको इसमें काफी डिटेल में बता दिया है कि ये 0 to 5 क्या होता है। ठीक है, द हीलिंग रिस्पांस स्टार्ट्स एट द मोमेंट ऑफ इंजरी। ठीक है, इसमें क्लॉटिंग कैस्केड किस तरह एक्टिवेटेड हो जाती है फॉरन आफ्टर। ठीक है, दिस इज द बेसिकली क्या है, दिस इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू रिस्पांस टू स्टेम ब्लड लॉस। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू रिस्पांस किस तरह के, इट विल अवॉइड टू आपके कोई भी ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए ये फौरन से वहां पे टिश्यू सेक्शन की साइड पे विल मेक अ क्लॉट, टिश्यू क्लॉट बनाते हैं। ठीक है, द इन्फ्लेमेटरी फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हीट। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी फेज में क्या होता है, देयर विल बी हीट, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस एंड लॉस ऑफ फंक्शन एट द वुंड साइड। तो ऑलरेडी इसमें काफी मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। ठीक है, सेकंड जो है बताया देयर विल बी ग्रेनुलेशन। ठीक है, ये कौन से डेज पे स्टार्ट होती है, इट विल बी ऑलवेज स्टार्ट एट द डे 3 to 14। ठीक है, ग्रेनुलेशन एंड इट विल बी ऑब्वियसली बाय द कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू इन द वुंड। ठीक है, और ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या क्या सेलुलर एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, देयर विल बी इन्फ्लेमेटरी सेल्स, angiogenesis, new blood vessels formation, fibroblasts, and there will be loose extracellular matrix and fibronectin and hyaluronate। ठीक है, what is angiogenesis के phase में क्या है, there will be collagen first detected at day 3 and it will rapidly increase for approximately 3 weeks, then more gradually for the next 3 months। ठीक है, and there will be fibroblast proliferation, that is called fibroplasia, and synthetic activity continues in parallel with revascularization।
And the next there will be endothelial cells from the side of venules closest to the wound begin to migrate in response to the angiogenic stimuli, that is angiogenesis. Then they will be forming the capillary bed. And the last था इसमें there will be epithelialization. ठीक है, आपके जो है ऊपर की epithelial वो completely बन चुकी होती है. ठीक है, the epidermis immediately adjacent to the wound edge, it will begin to thicken within 24 hours after injury. ठीक है, and in approximately incised wounds, re-epithelialization is usually complete within 48 hours. ठीक है, approximately incised wounds कौन से होते हैं? आपके जितने भी फाइन, क्लीन, अनइन्फेक्टेड और सर्जिकल वुंड होती है. ठीक है, जिसमें बड़ा परफेक्ट इंसिजन दिया जाता है और आफ्टर सर्जरी में सूचर से दोनों एड्स को अप्रोक्सीमेटेड भी किया जाता है. ठीक है, तो इन दीज केसेस देयर विल बी epithelialization is usually completed within 48 hours. और maturation का क्या है? It can last up to 2 years. ठीक है, 2 years तक कंटिन्यू करेगी. न्यू कोलेजन फॉर्म्स चेंजिंग द शेप ऑफ द वुंड एंड इंक्रीजिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, स्कार टिश्यू हाउएवर इज ओनली एवर अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये स्कार टिश्यू इट इज 50 to 80% as strong as the original tissue. ठीक है, remember never it will acquire the 100% strength. ठीक है, जितनी भी सर्जरीज होती हैं, जितने भी होते हैं, ठीक है, इसमें कभी भी ओरिजिनल टिश्यू की स्कार टिश्यू की स्ट्रेंथ इट इज नॉट 100%. ठीक है, it will be only 50 to 80% to the original tissue. So during the remodeling process, there is a gradual reduction in cellularity and vascularity of the reparative tissue. अच्छा, contraction क्या है? Only undesirable, मतलब ideally there should be no contraction. ठीक है, but this is undesirable where it leads to unacceptable tissue distortion and an unsatisfactory cosmetic result. ठीक है, तो आपकी जितनी भी कॉस्मेटिक क्रॉस और इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो बेसिकली होता है कि आपकी उस तरह से आपका टिश्यू दोबारा से नहीं बनता है. ठीक है, एंड वुंड कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली बिगिंस फ्रॉम डे 5. ठीक है, एंड इट इज कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली एट डे 12 to 15. Next we will see about the moist wound healing. Basic concept is that the presence of exudate, it will provide an environment that stimulates healing. Okay, and exudate में क्या क्या चीजें होती हैं? It contains some lysosomal enzymes, white blood cells, lymphokines, growth factors. So there are clinical studies which have shown that wounds that are maintained in a moist environment, they have lower infection rates and they can heal more quickly. ठीक है, moist wound healing is मतलब कि आपकी quickly होती है as compared to the dry. So next is what are the factors affecting healing? इसमें factors that can affect the healing, इसमें number 1 there is, अभी सिर्फ आपको नंबरिंग का बताती हूँ. ठीक है, फिर इसकी थोड़ी सी डिटेल में कर लेंगे. Number 1 there is immune status. Second, there is blood glucose level, and the third there is hydration, nutrition, blood albumin levels, oxygen and vascular supply, pain, and corticosteroids. अच्छा, अब मुझे बताओ कि इम्यून स्टेटस का क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इम्यून स्टेटस? क्या है इम्यून स्टेटस का? क्या मीनिंग है इसमें? क्या क्या रोल हो सकता है इम्यून स्टेटस? मतलब हीलिंग विल बी बेटर या फास्ट होगी, मतलब जो जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, या बैड होगी? फास्ट होगी. फास्ट होगी जी, फास्ट
फास्ट होगी इसलिए कि इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है, तो इसमें हीलिंग का जो प्रोसेस है इट विल बी फास्ट, ठीक है, एज कम्पेयर टू द उन पेशेंट्स के जिनमें इम्यून सिस्टम इज वीक या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, या जिनमें इम्यून सिस्टम जरा वीक होता है। कौन सी एग्जांपल इसमें आप दे सकते हैं? लाइक कोई डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है, जिस तरह आपको कल बताया था, उसमें डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जरा वीक होता है, ठीक है, तो इन पेशेंट्स में जरा वुंड हीलिंग या टिश्यू रिपेयर का प्रोसेस है दैट इज स्लो एज कम्पेयर टू द नॉन डायबिटिक्स या ऐसे पर्सन जिनके अंदर जिनका इम्यून स्टेटस अच्छा होता है, ठीक है। सेकेंड देयर इज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अगर हाई है तो देयर विल बी इम्पेयर्ड वाइट सेल फंक्शन, ठीक है। और थर्ड देयर इज हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन जो है इसका क्या रोल होगा? अगर हाइड्रेशन अच्छी नहीं है तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म स्लो होगा जी, अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है देयर विल बी स्लो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, स्लो मेटाबॉलिज्म है तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिले, ठीक है, आपकी वुंड हीलिंग इतनी फास्ट नहीं होगी तो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हियर इज न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग है? अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसे क्या एडवाइस करते हैं? हाँ जी, एनी स्टूडेंट? भाई आपकी डाइट अच्छी करो, ठीक है, आप उसमें कोई किसी भी कोई सर्जरी या वूंड या कुछ भी होता है तो इसमें क्या है, आपको कौन सी डाइट जो है वो हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करती है? कौन सी डाइट करती है, बताओ जल्दी से। ये तो थोड़ी सी तरह कॉमन सेंस या वैसे भी आपको पता है। वगैरह विटामिन्स। थोड़ा सा बेटा ऊंची बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम मीट कहते हैं उसे, फ्रूट्स, विटामिन्स वगैरह। जी, उसको कहते हैं कि आप मीट लो, ठीक है, मीट में क्या होता है? प्रोटीन। मीट में बेटा आपकी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होती है, अच्छी प्रोटीन्स, ठीक है, और प्लस विटामिन, ठीक है, इन दोनों का काफी अच्छा रोल होता है इन हीलिंग, ठीक है, अच्छी प्रोटीन्स एंड विटामिन, ठीक है, तो ये क्या है, हीलिंग को फास्ट करती है। और देयर इज ब्लड एल्ब्यूमिन लेवल्स, ठीक है, वही वाली बात की एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है, और वही के न्यूट्रिशन में आपको मीट, एग लें, मीट लें, ठीक है, और विटामिन सी फ्रूट्स की फॉर्म में, जूसेस की फॉर्म में, ठीक है, या इवन के आप सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड एल्ब्यूमिन लेवल दीज आर आल्सो बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रिपेयर, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रिपेयर, एंड दे क्या करेंगे, वो आप कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेंगे और वहां पे ओडीमा और इन सारी चीजों को, ठीक है। एंड द नेक्स्ट देयर इज ऑक्सीजन एंड वैस्कुलर सप्लाई, ठीक है, अगर ऑक्सीजन और वैस्कुलर सप्लाई अच्छी है तो इट विल आल्सो प्रमोट द हीलिंग प्रोसेस, ठीक है, तो इसको हीलिंग प्रोसेस को ज्यादा अच्छा कर देगा, ठीक है। पेन, पेन का क्या है, पेन इज गुड और बैड फॉर हीलिंग? पेन इट विल कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, आपके जहाँ पे हीलिंग का स्टार्ट हुआ है वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी, ठीक है, इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा पाएगी, ठीक है, तो पेन जो है बेसिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू हीलिंग प्रोसेस को थ्रो करेगी, ठीक है। अब पेन फ्री है पेशेंट तो उसमें हीलिंग का जल्दी, ठीक है। और नेक्स्ट देयर इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन पेशेंट्स में इफेक्टिव होते हैं या नहीं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट तो होता है बट दे डिप्रेस इम्यून फंक्शन को, आप उसको डिप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह ना लें, ओनली एंटीबायोटिक्स वगैरह इसको ट्रीट करने के लिए तैयार रहना। सो देयर आर सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, द कॉज ऑफ द वुंड क्या है, ठीक है, आप इसको देखोगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द वुंड, ठीक है, क्या है, सर्जिकल वुंड, ठीक है, ट्रॉमेटिक वुंड है, क्लीन है, कंटेमिनेटेड है, या कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट होने की वजह से वुंड हुआ है, ठीक है, तो इसमें सबसे प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में नंबर 1 पे व्हाट इज द कॉज ऑफ द वुंड,
ठीक है। सेकंड देयर विल बी अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस, ठीक है। अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस के आपका व्हाट इज द हेल्थ स्टेटस, आपका करंटली हेल्थ स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है। आपको साथ में कुछ और डिजीजेस तो नहीं लगी, ठीक है। these are also included in current health जो आपकी current health status को डिस्क्राइब कर रही होगी, ठीक है। लाइक डायबिटीज पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, ठीक है। इन सब पेशेंट में कंपैरेटिवली हीलिंग प्रोसेस इट विल बी स्लो, ठीक है। एंड थर्ड देयर इज मेडिकेशन, कि आप क्या क्या मेडिकेशन ले रही हैं, ठीक है। मेडिकेशन को इस तरह की नहीं ले रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को प्रेस करनी है या कर रही है, ठीक है, या उससे को फर्दर इट विल आल्सो डिक्रीज द हीलिंग प्रोसेस। और इसके अलावा प्लस व्हाट इज दिस इज एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। एंड व्हाट इज एटीट्यूड टू द वुंड के साथ आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ केयर, की अवेलेबिलिटी ऑफ केयर क्या है कि आपने खुद ही घर में उसको वॉश किया है, ऐसे वाटर से वॉश किया है और ठीक है, और उसका वेट कर रहे हैं कि आप उसको हील हो, या उसके ऊपर खुद ही डिफरेंट किस्म की ड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली उसमें क्या है कि आप उस वुंड को मजीद उसको इन्फेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द ऑल कंसिडरेशंस, ठीक है, दैट विल बी फॉर अ प्रैक्टिकली जो हीलिंग के लिए होनी चाहिए। उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ केयर इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। हर जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं पॉसिबल होती हर पेशेंट के लिए, ठीक है। एंड व्हाट आर द हीलिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हीलिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हिंड्रेंस टू हीलिंग। एंड सेकंड देयर विल बी एडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। एडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस वही के दे शुड बी गुड डाइट, ठीक है। आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एंड एडिक्वेट परफ्यूजन एंड ऑक्सीजनेशन, ठीक है। परफ्यूजन एंड ऑक्सीजनेशन एंड हाई क्वालिटी रिसर्च बेस्ड पेशेंट एंड वुंड मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर। एंड दे शुड बी करेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड देयर शुड बी आल्सो डिजीज मैनेजमेंट, अगर आपको कोई चल रही है तो उसकी भी प्रॉपर्ली मैनेजमेंट होनी चाहिए। अच्छा, काफी आज के लिए या और करना है, तो बता दो, कल भी इसकी कंटिन्यू करेंगे हम टॉपिक। अच्छा, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, सबको समझ आ गया? अच्छा, मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वुंड, किस तरह का होगा इफ देयर इज अ हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन किस टाइप के वुंड्स में होगा? क्लीन, जी, क्लीन, क्लीन होना चाहिए। एंड और it should be clean, uninfected, कि वहां पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और बेटा आपके माइंड में थोड़ी सी सर्जरी के लिए जाते हैं और वो थोड़ा सा सर्जरी का आना चाहिए कि वहां पे आपके ऑपरेशन थिएटर में एक वुंड आया है, ठीक है। उसमें क्या है, सर्जन जो है प्रॉपर इंसिजन दे रहा है, ठीक है, और साथ साथ उसको सारा क्लीन भी हो रहा है, ठीक है। ओटी की सारी हाइजीनिक कंडीशंस और उसकी सारी जो है वो भी अच्छी है, ठीक है। इट मींस के वुंड क्लीन है उसको, ठीक है, क्लीन भी है और उसको प्रॉपर इंसिजन भी दिया जा रहा है, कट है, ये कोई ब्लंटेड वुंड नहीं है, ठीक है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ये वो इस तरह का नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा प्लस आफ्टर सर्जरी सर्जन ने उसको सूचर्स भी लगाए हैं, अप्रोक्सीमेशन भी की है, ठीक है। तो these kinds of wounds के these are ideal for healing by primary intention, समझ आ गई है? यस मैम। तो ठीक है, इसके एंड्स भी अप्रोक्सीमेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो ज्यादा ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होनी होती है, इसमें सिंपली न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में ना बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है, ठीक है, विद इन 24 आवर्स न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर जो है वो स्कैप फॉर्मेशन भी हो रही है, नीचे से वो क्लॉट के करीब आ रहे हैं जैसे, ठीक है। तो ये जो है ना आपने ओके, एनी अदर स्टूडेंट टेल मी what kind of wounds are ideal for healing by secondary intention? एग्जाम्पल जी, जिनमें सिवियर लैक्सेरेशन होती है। ठीक है, लैसरेशंस, अल्सरेशंस, और कोई एग्जाम्पल? इसमें आपने मुझे एग्जांपल्स बतानी है, ठीक है। इन्फेक्टेड भी होते हैं, लैसरेशन भी होती हैं इन वुंड्स में, और
लाइक एन एब्सेस, ठीक है। एब्सेस क्या होती है? इन्फेक्टेड भी होती है, ठीक है, इन्फेक्टेड भी होती है, और उसके अलावा इसमें टिश्यू डेफिसिट भी होता है, ठीक है, जहाँ पे काफी ज्यादा इसमें ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन होती है उस स्पेस को फिल करने के लिए। अच्छा, ये बताओ कि व्हाट हाउ विल यू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या होंगे बिटवीन हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन एंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन? क्या क्या होंगे? मैम तीन मुझे सिर्फ वो बता। जी, मैम प्राइमरी में हमारे जो एजेस होंगे वो अप्रोक्सीमेटेड होंगे, ओके, whereas जो सेकेंडरी है उसमें लाइक लैसरेशन होगी, फार अपार्ट होंगे। ओके, एनी अदर डिफरेंस? मैम प्राइमरी वूंड जो होता है वो क्लीन होता है, सेकेंडरी जो होता है उसमें हम लोग ग्रेनुलेशन वगैरह और होने के लिए टाइम देते हैं, इन्फ्लेमेशन होने के लिए ठीक टाइम है, देते हैं। गुड, इट्स ठीक है, लेफ्ट ग्रेनुलेशन का भी है। और एनी अदर डिफरेंस? प्राइमरी अलावा में ये इट्स भी आप एक फास्टर। डिफरेंस बता सकते हैं कि जहाँ पे लार्ज टिश्यू डेफिसिट हो रहा है वहां पे फिब्रिन क्लॉट जो फॉर्मेशन हो रही होती है दैट इज लार्जर होती है एज कम्पेयर टू द हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन के दो, ठीक है। और उसके अलावा प्लस उसमें एक्सुडेट्स भी ज्यादा होंगे, नेक्रोटिक टिश्यू विल बी आल्सो, ये भी ज्यादा होगा, ठीक है। और उस जगह पे इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रेनुलेशन टिश्यू का आपने मुझे बताया। सेकंड, उसकी वुंड्स में इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा होती है, और उसके अलावा एक्सुडेट एंड फिब्रिन क्लॉट जो होता है वो भी लार्ज होगा, ठीक है। यस मैम। और कोई और चीज ना आपको समझ आई हो इसमें या कुछ और? बेटा इसमें बेसिकली जो है ना, आपको वुंड की टाइप पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो आपको मैंने प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग और सेकेंडरी इंटेंशन इसकी डायग्राम से अंडरस्टैंडिंग कर लो तो बेटर है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको इसके स्टेप्स तो जरूर आने चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट में विद इन 24 आवर्स क्या हो रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, ठीक है, इसी तरह से। और इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। आज का जो है बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। बाकी सारी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई है इसकी स्किन की थोड़ी सी बताई है, ठीक है, ये लेयर्स होती हैं, ये है वो है, ठीक है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसके अलावा इसमें सेकंड जो है फैक्टर्स हीलिंग पे क्या क्या इफेक्ट करती है, ठीक है, ये भी आपको कौन कौन से फैक्टर होते हैं एटलीस्ट आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और प्लस इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, बस इसमें यही है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ग्रेनुलेशन का करेंगे, और आगे फिर से कॉम्प्लिकेशन का कर लेंगे। बस इसमें यही चीज़ है, बस आपने जो जो आपके काम की हैं, जो आपने याद रखी है, ठीक है। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स क्या होती है, ठीक है। ये वाले क्लीन होते हैं, ये वाला आपने करना है, ठीक है, क्लीन, क्लीन, कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड एंड रेड, ठीक है। तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग तो होगी क्लीन वुंड्स कौन से होते हैं, ठीक है, क्लीन एंड कंटेमिनेटेड, ठीक है। क्लीन भी है लेकिन कंटेमिनेशन भी कई दफा हो जाती है। कंटेमिनेशन से इसका मतलब है कि वाकई ही वो इन कंडीशन में बने हैं, ठीक है, या इस तरह का फॉरेन बॉडी जो है वो पेंटेड की है, ठीक है, वो भी इसको कंटेमिनेटेड करेगी। और प्लस उसके अलावा डर्टी वुंड, ठीक है, जो कि पूरी एक्सपोज होते हैं और उसमें काफी इन्फेक्टेड और सारी चीजें। एंड और वुंड की क्या होती है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आप बोल रहे हो वर्ड उनका तो है क्या, ठीक है, तो इसको बताइए। कट और ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ एनी टिश्यू कॉज्ड बाय इंजरी और ऑपरेशन, ठीक है, ये आप ये आपको बताना चाहिए। बस यही चीज है। अच्छा बच्चों, आप लोगों का मैसेज किसी स्टूडेंट ने मुझे दिया था डॉक्टर सायरा के लिए कि उनसे आप लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आई विल क्लियर। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो भी कोऑर्डिनेशन या कोई भी आप लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई कोई भी इस तरह की चीज,
तो आप लोग जो व्हाट्सएप का ग्रुप में है ना उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन पोस्ट योर एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी, ठीक है, या कोई भी आपको कंसर्न आपकी स्टडी से, तो यू कैन आस्क इन योर थर्ड ईयर व्हाट्सएप ग्रुप, ओके राइट। Okay, tomorrow we will continue the same topic.